we are going to discuss something about you and your future, your career, and in fact, the confidence that you should carry when you now start looking for your future. Now, so far as your future is concerned, before you enter into your life of professional career, or maybe the career where you want to now do something with your future, so you must first of all remember certain things. There are very important things that should be remembered, and the most important thing is that there is a shift in your life now. You have to come out from one frame and enter the other frame. You have worked hard. Some of you must have worked very hard in getting this degree, and some of you must have enjoyed getting the degree, and some of you must have passed the degree with flying colors. Some of you must have slightly lesser marks or the position in your career, but nothing is important more than the confidence that you carry when you start your career. Because examination is not the real test of one's ability. Examination, of course, is one very important aspect, but it's not the real test of one's ability. All of you are capable, that's why you're there. So friends, I would like to present a small presentation, and then we'll be discussing one by one how everything influences in our career. Okay. So you may continue. Okay. You may continue. I'll turn on the presentation. Yeah, sure. Is it visible? So the time limit has been extended, so you can continue. Okay. I think I will share the screen. Yes, sir. You can share the screen. You have disabled it. So try now. Okay. Is it visible now? Yes, sir. It's visible. Yeah. Okay. So let's start with this first slide, which shows our yesterday and our tomorrow. Yesterday we were not aware. When we started our career, when we completed our school education, we were not clear where to go, how to do, what to do in my life. And now the future is very clear. The tomorrow is very clear. So your choice definitely is very clear. You have to actually enter into your future, which is brighter. There's no darkness. Everything is visible. And we have to actually opt for this particular option. And now you're moving from darkness to light, because now you have your degree with you. You have your professional degree with you, which you have worked very hard. You must have entered a good college, and colleges, teachers must have spent a lot of time in explaining everything to you. And whatever has happened, ultimately you have ended up in getting a good degree. Now you're proud people having a degree with you, and you are now going to start your professional career. Now, the very, very important thing is that it is up to you whether you want to be a part of the crowd or you want to differentiate yourself from the crowd. हम वही करेंगे जो सब कर रहे हैं, जो उसने किया वही मैं करूंगा, जैसे उसने किया वैसे ही मैं करूंगा. These things you have to slightly change your attitude, because you are unique. आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि that you can stand out of the crowd. Now, that is why I say that you should respect your efforts and respect yourself. The first and foremost thing is that you must have confidence in yourself and you should respect yourself, because self-respect leads to discipline. If you respect yourself, you will ultimately end up being a disciplined person, a disciplined professional, a disciplined student who is now entering into the professional life. And if you have both of them, that is the respect as well as the discipline, so you have the real power, right? Be sure that if you are disciplined and you respect yourself,
you really are powerful so far as the future life is concerned. Now, friends, you must have gained a lot of knowledge. You must have worked hard in your classes, learn everything about your chapters, your studies, your books, your different aspects of pharmacy. But unless and until you use your knowledge, it has no value. So knowledge is of no value unless you put it into practice. Because if you don't practice your knowledge, if you don't put it into practice and also practice your knowledge continuously, you may perhaps end up being a loser. So the most important thing is practice, practice and practice. Do not lose sight. अपना जो आप लोगों ने पढ़ाई करी है, आपने जो मेहनत करी है, उसको फिर से अपने दिमाग में परफेक्ट बनाने के लिए प्रैक्टिस का जरूरत होता है. प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. लगातार प्रैक्टिस करिए. जो आपने पढ़ाई करी है, जो आपके टीचर्स ने इतना समय बिताया है, जो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल्स, कॉलेज के स्टाफ ने पूरा अपना समय लगा के आपको एक डिग्री दिलाई है आपकी मेहनत के साथ, उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा. क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपके मसल्स को पार देती है. प्रैक्टिस पुट्स ब्रेन्स इनटू योर मसल्स. आपने जो काम करना है वो सब डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी परफेक्ट है. बिकॉज आप सब जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आपने जो भी पढ़ाई करी है उसको रिवाइज करिए. बिकॉज अभी आप अपने प्रोफेशनल फ्यूचर में जा रहे हैं. अब आप जो है उस फ्रेम से बाहर निकलिए जहां पर कि आपको लगता था दैट एंटरटेनमेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अभी आपको एंटरटेनमेंट आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्रिएट करना है. You have to start loving your job. You have to start loving your responsibilities. You have to start loving the responsibilities that you are going to get while you are there in the practice. बहुत important ये है कि आप अपने प्रैक्टिस करिए. जो भी पढ़ाई करी है उसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, बिकॉज आप अभी अब अपने प्रोफेशनल करियर को फ्रेम करने जा रहे हैं. And now, so far as pharmacists is concerned, you can see pharmacists are everywhere. Hospitals में pharmacists हैं, clinics में pharmacists हैं, home care में, long term care में, consultants में, managed care में, community में pharmacists का बहुत बड़ा role है. Drug information में pharmacists play a wonderful role. Academics, then pharmaceutical science and research. Industry जो है, pharma की industry जितनी भी है वो pharmacists के बगैर बिल्कुल अधूरी है. And then there are other associated managements also. Now let us see the opportunity horizon हमारा कितना बड़ा है. अब opportunities की बात करते हैं तो there are government organizations which require pharmacists. There are pharma industries. Lot many pharma industries अभी भी आज की डेट में भी struggle कर रही हैं कि उनको अच्छे pharmacists नहीं मिल रहे हैं. फार्मा इंडस्ट्रीज के साथ ऐसा है कि रोज के रोज फार्मा की जो है हजारों जॉब्स निकलती हैं फार्मासिस्ट के लिए. हजारों जॉब्स. एंड सिंस आई एम इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आई कैन टेल यू दैट अभी भी आज की डेट में भी हर कंपनी को एक अच्छे फार्मासिस्ट की जरूरत है. एवरी कंपनी इज लुकिंग फॉर अ फार्मासिस्ट. एंड दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग्स. एज इवन इन कोविड, the only job that was available in the market freely, that was of a pharmacist. किसी भी कंट्री के अंदर आजकल खासतौर पर हमारे कंट्री के अंदर जहां पर कि हमारे पास एक तो फार्मा का फ्यूचर बहुत बढ़िया है, वहां पर फार्मासिस्ट की जरूरत रोज के रोज है. और मोदी जी के ये अनाउंस करने के बाद कि हमको सेल्फ सफिशिएंट होना है, आत्मनिर्भर होना है, तो फार्मा इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है. तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर फार्मासिस्ट की जरूरत रोज के रोज है. हमारे पास भी बहुत क्वेरीज आती हैं मेरे पास कि सर हमें जो है फार्मासिस्ट चाहिए, हमें फार्मासिस्ट चाहिए और क्वालिटी फार्मासिस्ट चाहिए. तो हम भी रेफर करते रहते हैं बच्चों को. लेकिन क्वालिटी फार्मासिस्ट होने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है. हॉस्पिटल्स में फार्मेसीज की जरूरत है. हॉस्पिटल्स को अच्छे फार्मासिस्ट की जरूरत आज से 20 साल पहले भी थी, आज भी है. आज तो खास तौर पर इसलिए है because now the hospitals also want to have a quality working. They just want to change the mindset of being that old time hospitals. आज की डेट में अपडेट होना बहुत जरूरी है. रिसर्च इंस्टीट्यूट्स
अब इंडिया के अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे सेटअप होने वाले हैं, और जो चल रहे थे और बड़ा डोमेंट तरीके से चल रहे थे, ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस, ऑल दोज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आर गोइंग टू फ्रेशन अप, दे आर गोइंग टू रीस्टार्ट द वर्किंग ऑन द रिसर्च. There are a lot of pharmacists required in research institutes. Food and cosmetic industry, FSSAI की जो है आज की डेट के अंदर मार्केट के अंदर बहुत डोमिनेंस हो चुकी है, बिकॉज फूड इंडस्ट्री को आज FSSAI जो है वो कंट्रोल करती है, और FSSAI को हर दिन दे जस्ट ऑर्गेनाइज दोज ट्रेनिंग्स फॉर न्यू रिक्रूट्स. उनको बहुत सारे लोग चाहिए कंट्री के अंदर. आज की डेट के अंदर FSSAI को हर कंट्री के हर कोने में लोग चाहिए होंगे. सो फ्रेंड्स, यू आर एक्चुअली इन द राइट पाथ, यू आर इन अ वंडरफुल पाथ. तो आपके लिए तो आप देख लीजिए कि आपका फ्यूचर जो है वो इंडस्ट्री के अंदर सबसे अच्छा फ्यूचर जो ब्राइट है वो फार्मासिस्ट के लिए. देन क्लिनिकल फार्मेसी, देन वी कैन से रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च ORG, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो है वहां पर भी बहुत जरूरत है. कम्युनिटी फार्मेसी एंड फार्मा दिस हॉस्पिटल फार्मेसी, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है. उसमें जो है वो काफी कंपटीशन हो चुका है. नंबर ऑफ जो सीवीज इतने सारे आते हैं, और उसको पूरा मैच करने के लिए जो है मार्केट के अंदर जॉब्स भी वैसे ही हैं. देन फार्मा मार्केटिंग का आप लोगों को कुछ अंदाजा होगा कि फार्मा मार्केटिंग में आज की डेट के अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो मिलती है वो फार्मेसी ग्रेजुएट्स को मिलती है सबसे ज्यादा. A pharmacy graduate with a slight good language and of course some knowledge. All good companies ranging from Glaxo and Sun and Mankind and others, everybody would like to have a pharmacy graduate into their marketing team. Academics के लिए तो there are some students who are actually interested in academics. We'll talk about it later in our slides. Then pharmacy के जो graduates हैं, particularly B.Pharm, they can actually have their own industry. They can set up industries if they are interested in business. They can have their distributionship of pharmaceutical companies, and they can also own a pharmacy shop because they are authorized to have a pharmacy shop. And every pharmacy shop is necessarily must have a pharma graduate because license उसी के नाम का उस फार्मा शॉप को मिलता है. Now let's go slightly into detail. Now this friends is a pharma tree. Now see the number of opportunities you are having in production and manufacturing. Production and manufacturing without a pharmacy graduate is not at all available ही नहीं है और हो ही नहीं सकता. Formulation and development, quality assurance में कई सारे फार्मेसी कंपनियां जो है वो अपने मतलब अपने टेस्ट तक क्रिएट करती हैं. इंटरनल टेस्टिंग होती है. थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बट क्वालिटी तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक एक अच्छा फार्मासिस्ट नहीं है. ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, इंडिया के अंदर ड्रग रेगुलेशन के लिए रोज के रोज नए रेगुलेटरी ऑर्डर्स निकलते हैं. रोज के रोज नया एक ड्रग ऑर्डर आता है. इसलिए रेगुलेटरी सेक्टर में भी बहुत सारे लोगों की जरूरत है. देन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एकेडमिक्स, मार्केटिंग में बहुत ज्यादा नीड है. अभी आने वाला थोड़ा सा ये समय जो है, ये एक आध महीने का 2 महीने का समय, उसके बाद आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर मार्केटिंग के लिए फार्मेसी स्टूडेंट्स की एक पूरी लाइन लग जाएगी. Then government jobs are there, chemist shops, entrepreneurship we have already discussed, and there are for higher studies also. If some boys want to go, we'll discuss that also. And there are opportunities otherwise as well. थोड़ा सा ज़्यादा knowledgeable बच्चे जो हैं वो nuclear pharmacy, pharmacotherapeutics, forensic pharmacy, pharma consultancy and medical transcription, उसको भी बहुत अच्छा करियर बना रहे हैं कुछ बच्चे. Now let's start from teaching. If you are really a good student and you have learned everything and you want to teach the same things that you have learned, you can start your career with a lecturer. एक lecturer से आप career अपना शुरू कर सकते हैं, and you can go right up to the chancellor in a particular teaching department. And
the money offered in this particular segment is good. असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बेसिक सैलरी है, शुरुआत को सैलरी जो है वो 40 to 45,000, and in an associate professor it ranges from 75,000 to 80,000. And it's a normal salary of anybody who is entering into the teaching line. And थोड़ा सा आपके पास अगर नॉलेज का आपको बुक है या नॉलेज रिलेटेड, नॉलेज ओरिएंटेड आपका थॉट प्रोसेस है, you can choose teaching as your career. फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट आपने अभी डिस्कस किया कि हॉस्पिटल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी. हॉस्पिटल फार्मेसी में भी बहुत जरूरत है और कम्युनिटी फार्मेसी में भी बहुत जरूरत है. फार्मासिस्ट की जरूरत है. क्वालिटी एश्योरेंस, वी हैव डिस्कस्ड all levels of manufacturing. Every level of manufacturing, what is required is a quality pharmacist and clinical research associates. Friends, I'm very proud to tell you that India is now going to spend a lot of money into research. बहुत सारी उस चीज में जो है इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, होने वाली हैं. काफी सारी फार्मा कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमारा जो है वो जो सरकार है, सरकार की इसके लिए बहुत सीरियस है. There are special provisions that are being created for research for our future. और इस केस में आप अपने आप को थोड़ा सा नॉलेज से रिलेट करेंगे, नॉलेज को अपडेट किया करेंगे, तो आपका क्लिनिकल रिसर्च में बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है. आने वाले समय में हर लेवल पे, I know some of my friends who have this research companies, and in each company there are approximately 150 to 160 scientists. They call them scientists. They call them scientists. Their research associates को scientists. They are being paid up very very well. बहुत अच्छी पेमेंट्स उनको वो देते हैं. तो रिसर्च, लेकिन रिसर्च के लिए थोड़ा सा नॉलेज ओरिएंटेड होना आपका बहुत जरूरी है. दैट इज व्हाई शुरुआत में मैंने आपसे बोला था कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस व्हाट यू हैव लर्न. जस्ट लर्न व्हाट यू हैव, प्रैक्टिस व्हाट यू हैव लर्न. बहुत ज्यादा आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है. जितना आपने पढ़ाई करी है वो सबको प्रैक्टिस करिए, वो फिर से आप याद करिए, फिर से देखिए, फिर से समझिए, क्योंकि आगे आने वाले करियर में उसका काफी ज्यादा रोल आपके पास रहेगा. Then data managers, these are jobs being announced on daily basis. Regulatory managers, I told you that a lot of regulatory rules and regulations are being passed in India. हर दिन कोई ना कोई नया रूल निकलता है, कभी डीपीसीओ, कभी कुछ लगातार निकलते रहता है. तो उसके लिए रेगुलेटरी मैनेजर्स की बहुत जरूरत पड़ती है जो उस रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करें. अब उसके लिए जो है, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारा मार्केट है, तो उसमें रेगुलेटरी के मैनेजर्स की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि अदरवाइज उनके बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते. But then they would actually like to have disciplined, knowledgeable people in the industry. And I'm sure that all of you are disciplined as well as knowledgeable. मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का बोलबाला हो रहा है, बिकॉज सारी दुनिया में एक आगे आने वाले समय में एक जेनेटिक एवोल्यूशन के साथ रिलेट हो जाएगा. बायोकेमिस्ट्री विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहां पर कि एवरी पेशेंट वुड लाइक टू हैव हिज कंप्लीट प्रोफाइल फ्रेम. पूरा उसका जो प्रोफाइल जो है उसको पूरा कोडिंग करी जा सकती है. तो उसके लिए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की, कि पेशेंट का एलर्जी प्रोफाइल क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, पेशेंट का ट्रीटमेंट हिस्ट्री क्या है, पेशेंट की डिजीज हिस्ट्री क्या है, इसके लिए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. और वहां पर भी फार्मासिस्ट, ओनली ए फार्मासिस्ट, ट्रेन्ड फार्मासिस्ट कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. Then I told you something about sales and marketing. Good pharma companies, even the best of the pharma companies, they would like to have fresh pharma graduates in their marketing team. But first, fresh pharma graduates, only two things you need to update yourself is good communication and a brush up of your knowledge. Communication का होना बहुत जरूरी है, not only in pharmaceuticals. आज की डेट के अंदर, आज का जो सिनेरियो है, ओवरऑल जो वर्ल्ड का सिनेरियो है, उसमें कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है. गुड कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट.
You must be able to communicate what you feel. You must be able to communicate what you know. You must be able to communicate what you want. Right? You must also be able to communicate what you can do. So communication is very, very important. और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जहां पर कि पूरा नॉलेज से के साथ ही काम होता है, एक अकेला सेल्स का प्रोफेशन है जहां पर कि जो कस्टमर है वो रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा नॉलेजेबल होता है, क्योंकि डॉक्टर होता है उसका क्लाइंट। तो डॉक्टर जो उसका कस्टमर होता है, तो उस डॉक्टर को ट्रीट करने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ता है, अपना स्टैंडर्ड को ऊपर करना पड़ता है। तो उसके लिए नॉलेज की जरूरत है, और फार्मेसी ग्रेजुएट से बेटर नॉलेज जो है वो इंडस्ट्री में नहीं हो सकती। तो आगे आने वाले समय में भी जो है ये चीज चलती रहेगी। फार्मा कंपनीज को अच्छे फार्मास्यूटिकल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत है, और उसके लिए अच्छे फार्मेसी ग्रेजुएट्स को रोज ही ढूंढते रहते हैं, कॉलेजेस में जाके भी, बाहर भी, कंसल्टेंसीज के थ्रू भी। दे ऑलवेज लुक फॉर गुड pharmacy graduates with a good communication and good knowledge. So update yourself and improve your communication. I would suggest all of you to improve your communication. So industrial pharmacy, इंडस्ट्री के अंदर हर जगह पे फार्मासिस्ट की जरूरत है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हेड हो, या वो क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएट हो, या वो स्टोर को मैनेज करने वाले हो। तो सब फार्मेसी ग्रेजुएट्स ही चाहिए होंगे। अब देखिए R&D में आप जाते हैं तो फॉर्मुलेशन में फार्मेसी ग्रेजुएट चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस में, क्वालिटी कंट्रोल में, बायो एनालिसिस में, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के लिए फार्मासिस्ट चाहिए, फार्माकोलॉजी के लिए भी एक फार्मासिस्ट से ज्यादा मतलब ज्यादा इफेक्टिव कोई हो ही नहीं सकता। ड्रग डिस्कवरी, नए नए ड्रग्स की डिस्कवरी होती है तो सब जगह पे फार्मेसी के ही लोग होते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रेगुलेटरी डिवीजन, सारे में जो है R&D का जितना भी सेगमेंट है जिसमें कि इंडिया इज ट्राइंग टू टेक अ स्पीड नाउ, आने वाले समय में यू विल सी मोर एंड मोर थिंग्स हैपनिंग इनटू R&D, वहां पे फार्मेसी ग्रेजुएट्स की जरूरत है। एंड प्रोडक्शन, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, कॉस्मेटिक्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड सो मेनी अदर्स। एंड देन सो फार एज मार्केटिंग इज कंसर्न, मार्केटिंग में सेल्स प्रमोशन है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, वहां भी जो है इन फार्मेसी में जो है इंडस्ट्री के अंदर पीपल आर रिक्वायर्ड। And there are pay packages approximately ranging from 15,000 to 35,000 to 40,000 to even 50,000 rupees, depending upon the quality of the people, depending upon your experience. Initially, though, everybody has to actually take some experience somewhere to start your career. Never ever in your beginning of your career, never frame your career as per the salary that you are getting. Just frame your career as per the opportunity of or responsibility that you're getting. Because इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत जल्दी सेल्स पैकेजेस जो है, पे पैकेजेस चेंज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आप अगर माइंडसेट अपना जो है वो प्रोग्रेसिव रखते हैं तो आपको आगे आने वाले समय में पे पैकेजेस विल नेवर बी अ प्रॉब्लम। बट यू हैव टू लर्न, जो भी आप करते हैं उसको लर्न करके आगे बढ़ेंगे तो इंडस्ट्री वेलकम करती है। आई डोंट थिंक इफ इट इज अ गुड फार्मेसी ग्रेजुएट, एक भी अच्छा फार्मेसी ग्रेजुएट जो है जॉब के बगैर नहीं रह सकता। इतने जॉब्स मार्केट के अंदर अवेलेबल। आई एम एवरी डे फेसिंग आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम माय कलीग्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री, फ्रॉम द इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री। यार जल्दी से कोई लोग मिल जाए, लोग नहीं मिलते हैं, अच्छे लोगों की जरूरत है हमें, जो है ये इतने लोग चाहिए इसके इस डिवीजन में, इतने लोग चाहिए इस डिवीजन में, रिसर्च में चाहिए, प्रोडक्शन में चाहिए। तो बहुत ज्यादा डिमांड है फार्मेसी ग्रेजुएट्स की। एंड देन क्लिनिकल रिसर्च वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हॉस्पिटल फार्मेसी, एवरीवेयर फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट सर्विस में आप कोई भी ऐसा देखिए, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, ड्रग इंस्पेक्टर्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है वो नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल। फूड एंड ड्रग इंडस्ट्री के अंदर
Then government schools, professors and HODs, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पर जो है वो एजुकेशन में लोग चाहिए होंगे. यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए pharmacists are always welcome in, particularly in the medical departments. गवर्नमेंट एनालिसिस फोरेंसिक साइंटिस्ट्स एंड पब्लिक हेल्थ के लिए, टॉक्सिकोलॉजी के लिए एंड फार्माकोलॉजी के लिए, एंड देन अप्रूव्ड केमिस्ट्स. देयर आर अप्रूव्ड केमिस्ट फॉर गवर्नमेंट अथॉरिटीज. अप्रूव्ड केमिस्ट वो भी फार्मासिस्ट ही होते हैं, चाहे हॉस्पिटल फार्मेसी हो, रेलवे फार्मेसी हो, गवर्नमेंट एनालिसिस हो, गवर्नमेंट फोरेंसिक लैब्स हो या ड्रग इंस्पेक्टर हो. ऑल आर रिक्वायरिंग गुड फार्मेसी ग्रेजुएट्स. So these were some of the options that you are having as pharmacy graduates. कि क्या क्या कर सकते हैं. You can go for hospital pharmacy, you can go for community pharmacy, you can go for education, you can go for marketing fields, you can opt for government services, you can opt for maybe research and development, you can opt for medical transcription. So there are so many things that you can opt. But some of you, maybe some of you are interested to go for higher education. So there are options available in higher education also. Postgraduates, you can go for MPharm, right? And MPharm जो है वो कई सारे, then MPharm के भी जो है वो अलग अलग specializations में आप जा सकते हैं. And you can do your PhD later. Some of you who must be really interested in education, they have a long way to go. Education में बहुत दूर तक आप जा सकते हैं. Then you can learn patent laws, IPR जो intellectual property rights आज की डेट के अंदर बहुत important हो चुका है, वो कर सकते हैं. Clinical research में जा सकते हैं. Management में, then there are some of them can do PGDM, some of them MBAs. तो क्योंकि आज की डेट के अंदर MBAs वगैरह जो बच्चे करते हैं तो वो ये समझते हैं कि उनको जल्दी आगे जॉब्स मिल सकते हैं, और ऐसा होता भी है. मार्केटिंग या मैनेजमेंट के केसेस में MBAs ऑलवेज हेल्प्स. एमटेक कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में. बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो आज की डेट के अंदर जो जीनोम्स वगैरह पे जो बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, वहाँ आप जा सकते हैं. रेडियोथेरेपी, एंड देन यू कैन ऑल्सो गो अब्रॉड टू स्टडी different case in different segments. Now I always feel that there is advantage in India, a bright future for pharmacy graduates, because Chinese economy is slowing down. Friends, आप रोज सुनते होंगे, टीवी देखते होंगे, कहीं पे भी न्यूज़ सुनते होंगे इंटरनेशनल या नेशनल, तो चाइनीज जो है इकोनॉमी वो थोड़ी सी श्रिंक कर रही है. उनके एक्सपोर्ट्स पे बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है. अब चाइना ने जो है वो सारे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट्स में अपना बोलबाला उनका बहुत जबरदस्त था, बिकॉज दे यूज्ड टू गिव मींस प्रोडक्ट्स विथ चीपर वैल्यूज, राइट, इकोनॉमिकल वैल्यूज. तो उनका जो सस्ता माल था वो बेचते थे, क्योंकि वहाँ पे उनके यहाँ पे लेबर जो है वो थोड़ी सी इकोनॉमिकल थी. उनके यहाँ से वो सारा मार्केट जो बाहर जा रहा है, सो हु इज गोइंग टू एक्चुअली टेक प्लेस, उसका जो है वो जगह कौन लेगा, उसकी जो है रिप्लेसमेंट कौन लेगा. तो कुछ कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर जो उसका काम कर रही है, और उसमें इंडिया का बहुत अच्छा रोल होने वाला है. अंडरस्टैंड दिस. एंड एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा काम है, और एक्सपोर्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोर्ट्स है, मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट करेंगे तो वो कोई भी मेडिसिन यहाँ से, कोई भी फूड आइटम तब तक नहीं जा सकता है जब तक वो एक अच्छे फार्मासिस्ट के हाथ से गुजरा ना हो. So it's a wonderful future. Government policy of Make in India, जिसमें कि skilled youths की बहुत important है, importance आएगी और बढ़ती रहेगी, ये कई साल तक बढ़ती रहेगी. और since India में English is a basic language, so India can actually dominate the entire world. Because बाकी countries के अंदर दिक्कत क्या है, there are some countries, लेकिन वहाँ पे क्या है कि English is not the basic language, so उनको वो बहुत मुश्किल हो जाएगा टोटल सारे वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करने का. तो इंडिया के साथ ये एक एडवांटेज है. कॉस्ट इफेक्टिव क्लिनिकल ट्रायल्स, केमिकल सिंथेसिस पाइपलाइन, नए जो है वो केमिकल्स, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जहां हमने बात करी थी, उस पे इंडिया इज गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, और वहां पे फार्मासिस्ट की जरूरत है नए केमिकल एंटिटीज के लिए. स्ट्रॉन्ग लीगल एंड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क
जिसे IPR कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंड वाइब्रेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस एंड इंफॉर्मेशन, उसके मामले में भी इंडिया का कोई जवाब नहीं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो बूम हमेशा से रहा, अभी फिर आएगा, बिकॉज अभी वर्ल्ड को जो चाहिए होगा, अभी इंफॉर्मेशन का जो वाइब्रेंस चाहिए, उसके लिए भी इंडिया विल प्ले अ वंडरफुल रोल। नाउ फ्रेंड्स, वंस यू हैव फिनिश्ड योर दिस स्टडीज, तो सब लोगों को ये परेशानी होती है कि भाई इंटरव्यूज होंगे, पता नहीं इंटरव्यू में पास होंगे या नहीं होंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। We'll talk about these. But before we go about the interview specifics, let me tell you that all of you are capable, right? Have confidence in yourself. जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, he is also one among you, having slightly more experience. That is the only thing, only difference. So be confident when you are going for an interview. Be very, very confident, because वहां पे जो सवाल होंगे वो आपके आसपास के ही सवाल होंगे, आपके जान पहचान के सवाल होंगे, लेकिन थोड़ी तैयारी करना तो बहुत जरूरी है। तैयारी के बगैर जो है, एक सचिन तेंदुलकर भी फील्ड में जाके खेल नहीं सकता, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसको सब कुछ मालूम है, लेकिन उसको भी प्रैक्टिस का जरूरत पड़ता है। कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी चीजें हैं बट बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस कॉमनली आस्क्ड। नॉर्मली जो है सब लोगों को ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि पर्सनल, बिहेवियरल और टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। आपके बारे में पूछा जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सो यू हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अब उसमें जो है वो क्या एक्सप्लेन करते हैं आप, वो इंपॉर्टेंट है। डोंट स्वे अवे फ्रॉम योर टॉपिक। और जो है वो प्रोफेशनल डिस्कशंस में प्रोफेशनल चीजों को ही डिस्कस करना बहुत जरूरी है। बिहेवियरल, कि आपका बिहेवियर जो है वो, उसको वो देखेंगे वहां पर कि बिहेवियर आपका कैसा है। और टेक्निकल क्वेश्चंस कि क्या जो आपने पढ़ाई करी है उसके बारे में कुछ मालूम है कि नहीं। इसलिए मैं शुरू से ही बता रहा हूँ आपको, जो भी पढ़ाई करा है उसको प्रैक्टिस करिए, उसी में से सब कुछ निकल आएगा। आपकी एबिलिटीज, आपके एटीट्यूड्स, आपके रेडीनेस ऑफ जॉब जो है वो इन सवालों से पता चलता है। अब क्वेश्चंस आते कैसे कैसे हैं, लेट अस सी वन बाय वन नॉर्मली आस्क्ड क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आएगा, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ फार्मासिस्ट। अब व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ फार्मासिस्ट, ये बड़ा वेग सा क्वेश्चन है। और कुछ बच्चे जो है वो कहते हैं क्योंकि पापा ने बोला था, क्योंकि घर में जो है वो ऐसा लगता था, क्योंकि हमारे जो है भाई ने हमको बोला था। अब भाई ने बोला था, पापा ने बोला था, मम्मा ने बोला था, इसकी वैल्यू इंटरव्यूज में नहीं होती है। इंटरव्यू में आपके पास जवाब ये होना चाहिए, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ फार्मासिस्ट, आई एम इम्प्रेस्ड बाय सीइंग द फार्मासिस्ट वर्किंग। बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू आर प्रोफेशनली इंक्लाइंड, किसी के कहने से अगर आप बन चुके हो, दैट मीन्स कि आप खुद इंटरेस्टेड ही नहीं हो इसमें। ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब when you answer your questions. Then what subject did you like the most? आपको कौन सा अच्छा लगता है। पता चला कि आपने बोला कि मुझे हिंदी अच्छा लगता था जी, संस्कृत अच्छा लगता था। अगर यार ये तो कहीं और ही जा रहा है। आपको कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रगल हो रहे हैं, तो पता चला कि आपने बोला जी केमिस्ट्री मेरे को ठीक नहीं लगती। बोले उसको केमिस्ट्री ठीक नहीं लगती थी, आगे करेगा क्या। तो बड़ा सोच समझ के अपने सवालों का जवाब, अपने इमोशंस को साइड में रख के आप ये देखिए कि रिक्वायरमेंट मेरे जॉब की आगे क्या है, उसी के हिसाब से आपने सवालों को अच्छी तरह से जवाब ढूंढिएगा उनके, राइट। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया। और उसके लिए पहले आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, आपको अपने आप पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। देयर विल बी क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब आप स्ट्रेंथ के लिए बता सकते हैं कि सर मैं जो है वो दौड़ लगा सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, या तुम गाना ही गा ले, बट थैंक यू वेरी मच। अब वीकनेसेस में आप बोलते हैं कि मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अरे गुस्सा आता है तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। सो लेट अस हैव द प्रोफेशनल आंसर्स टू प्रोफेशनल क्वेश्चंस। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? यस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. I have my strength is to have the ability to understand the needs of the people. Patience and responsibility, yes, they are my strengths. Like this,
कस्टमर स्किल सर्विस को मैं दे सकता हूँ, कस्टमर्स को सर्विस के लिए स्किल्स है मेरे पास, सेल्स स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है मेरी, attention to detail, enthusiastic personality. And then there will be questions like, where do you see yourself 5 years later? You must have a clear goal with you. कि 5 साल के बाद मैं क्या करने वाला हूँ? These are normally asked questions by almost all interviewers to understand what is the quality of the candidate that I am interviewing. How do you keep? There is one very important thing, particularly in pharmacy, for pharmacy students, that अपने आप को करंट फार्मेसी के प्रैक्टिसेस के बारे में अपडेट करने के लिए आप क्या करते हैं? तो वहां पे आपको जो है अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन, अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्न, आपको साथ साथ में जो है वो उसके साथ जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती हैं, उस इंफॉर्मेशन में आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सवाल आएगा और क्या क्या करते हैं आप अपने आप को अपडेट रखने के लिए, और दुनिया में क्या हो रहा है, अभी लेटेस्ट क्या हुआ फार्मेसी में. तो वो मूवीज और क्या नाम है टीवीज पे और सीरियल्स और डांस प्रोग्राम्स से बेटर ये है कि वी स्पेंड सम टाइम इन डेवलपिंग आवरसेल्व्स इनटू द प्रोफेशनल करियर इटसेल्फ. बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन इंटरनेट को उसके लिए यूज करें rather than going for Instagram. Right? All of us should work on getting the knowledge updates till you get a good job, because everybody would like to have the best candidate जब interviews होते हैं. Then there are certain questions like, why should we hire you? अब आपको क्यों लेंगे? Then there you must be able to tell the person that these are the good qualities which will definitely help in your, if you hire me, this is definitely going to give advantage to your industry, to your company, to your office, to your anything, to your factory, to your manufacturing unit, because I have these good qualities. And there are some in-depth questions भी. कभी-कभी जो है वो questions करते करते वो in-depth question में चले जाते हैं, किसी एक particular चीज के बारे में पूछना शुरू करते हैं. उससे उसका मकसद क्या होता है, that he wants to see whether he is able to have a problem solving skill. More specific understanding के लिए means he maybe particular segment को वो चुनेगा और उसके बीच में आपके पास सवाल करेगा. So when if you are well versed with almost what you have learned, जितना आपने पढ़ाई करी है उतना भी आपको मालूम है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी इस चीज में. So these were the interview specifics. Now interview तो ठीक है, इंटरव्यू से पहले आपको क्या भेजना है, एक रिज्यूमे भेजना है. अब जब रिज्यूमे भेजेंगे आप, तो रिज्यूमे भेजते समय जो है कुछ स्पेसिफिक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. रिज्यूमे ऐसे नहीं कि जब कभी कभी हमारे पास जब रिज्यूमेज आते हैं तो वो इतना जल्दी में बने हुए रिज्यूमेज होते हैं, तो ऐसा लगता है कि बच्चे को जो है वो इंटरेस्ट ही नहीं था कि ये रिज्यूमे बनाए. 4-5 लाइनों में लिख दिया और बोला कि भाई ये दे लो बस, अब मुझे बताओ जॉब दोगे कि नहीं दोगे. तो थोड़ा रिज्यूमे पे आप समय बिताइए. रिज्यूमे लिखते समय जो है अपने सारे चीजों को साइड में रख के उसको, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसी के बेस पे आपको बुलाया जाएगा. रिज्यूमे साथ में सामने होगा तो आपको उसको देखने के बाद आपको बुलाया जाएगा. अब ये रिज्यूमे बनाते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. लेट अस सी वन बाय वन हाउ टू राइट योर फार्मेसी स्टूडेंट रिज्यूमे. नाउ लेट्स सी. एड जब भी आप रिज्यूमे बना रहे हो तो आपने क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करी है, कोई वॉलंटियरिंग एक्टिविटी करी है, कोई आपको प्रोजेक्ट मिला था, कोई आपको एक्टिविटी मिली थी, कोई मतलब आउटडोर एक्टिविटी करी, इंडोर एक्टिविटी करी, उसको वहां लिखिए, उसके अंदर उसको मेंशन करिए. अपार्ट फ्रॉम अदर्स जो बाकी चीजें होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका होना जरूरी है. इससे क्या होता है कि इससे एक इंटरव्यूअर समझता है कि ये लड़का ये नहीं है मतलब पढ़ लिया और हाथ खत्म हो गया. ये उसके बगैर भी इसने बहुत कुछ किया है. He has done much more than what was told to him, and that means this person can be given extra responsibilities. This person can actually handle extra responsibilities, or make the education section perfect. आपने जो भी पढ़ाई करी है उसको ठीक से डिफाइन करिए. ये नहीं कि मैंने बी फार्म कर दिया बाकी तुम्हारी मर्जी, ऐसा नहीं. तो वो अपने जो है वो सब्जेक्ट को ठीक से डिटेल करिए. अपनी कोई इंपॉर्टेंट जो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो उसको
हाईलाइट करी है कि ये चीजें करी हैं मैंने अपने टोटल जो है पढ़ाई के करियर में, मैंने ये करा और ये मेरी एजुकेशन है, उसको जरा ढंग से लिखिएगा। उसके बाद रिज्यूमे की समरी लिखना बहुत जरूरी है। स्टार्ट जो है अपना रिज्यूमे का उसकी समरी से करिएगा। क्या आप अपने बारे में समझते हैं, आपके अपने बारे में क्या व्यूज हैं, उसको देखने के बाद आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आपने रिज्यूमे बनाया, इफ यू सेंड वन रिज्यूमे टू वन कंपनी and then you have to send a resume to the second company, no, normally people do what, उसी का कॉपी करके कट कॉपी पेस्ट करके भेज देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि मेरे को यहाँ जॉब करने के लिए और दूसरी जगह जॉब करने के लिए दोनों में क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अपने रिज्यूमे को कस्टमाइज करिए। रिज्यूमे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिज्यूमे इज नॉट सिंपली अ डॉक्यूमेंट, ये आपकी प्रेजेंस है, आपकी वहां पे पहचान है। तो रिज्यूमे को बनाते समय जो है अपने आप को थोड़ा सा सीरियस बना के ही बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। देन आपका रिज्यूमे होना कैसा चाहिए? अब इसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उसको डालना बहुत अच्छा रहता है। जैसे एकम्प्लिश्ड वर्ड होता है, डेवलपमेंट की बात होती है, मैनेजमेंट की बात होती है, टीम प्लेयर, आई एम ए टीम प्लेयर, आई कैन ऑलवेज वर्क विथ ए टीम एंड आई एंश्योर दैट एक टीम के साथ मिलकर मैं एक टीम को सक्सेसफुल बनाने में बहुत बड़ा काम करूंगा। तो अगले को थोड़ा सा जो है कहता है कि नहीं यार ठीक है, टीम में रखने लायक आदमी है, क्योंकि एवरीथिंग हैज टू बी डन इन टीम्स। अकम्प्लिश, डेवलपमेंट, तो इन सब चीजों का कीवर्ड्स का यूज करना अपने रिज्यूमे में बहुत अच्छा रहेगा। टेलर योर रिज्यूमे एज पर द जॉब, जो जॉब है उसके हिसाब से अपने रिज्यूमे को टेलर कीजिए, रिज्यूमे को ठीक से बनाइए। जो भी पोजीशन है where you means whatsoever you fit into that particular, जितना नजदीक आप उस जॉब के फिट करोगे उतना अच्छा रहेगा। यूज अ मॉडर्न प्रोफेशनल फॉर्मेट, ना कि बस गए वर्ड में और 4 लाइनें लिखी और रिज्यूमे बन गया। डोंट डू दिस। आजकल अच्छे अच्छे फॉर्मेट्स आते हैं, उन फॉर्मेट्स को यूज कीजिए, बिकॉज अगला जब रिज्यूमे देखे तो वो रिज्यूमे देख के इंप्रेस हो जाएगा, ये लड़के का रिज्यूमे अच्छा है, इसको बुलाओ इंटरव्यू के लिए। बाद में आप इंटरव्यू स्किल्स दिखा सकते हैं। इंटरव्यू स्किल्स से पहले आपको जो है अपने रिज्यूमे को इस तरह से बनाइए कि अगला आपको बुलाए कि नहीं यार इसको बुलाओ, एक बार मिलते हैं इसके साथ, फिर आप अपने इंटरव्यू स्किल्स के हिसाब से अपने जॉब को ले सकते हैं वहां। मेक श्योर इट इज एरर फ्री। गलतियां बहुत होती हैं रिज्यूमेज में, हम रोज देखते हैं, कुछ भी गलत लिखते हैं। वर्ड में जो है वर्ड्स की मिस्टेक्स होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, सब कुछ होता है उसमें। जल्दी में बनाया गया हुआ रिज्यूमे तो कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। उससे क्या होता है, जो एचआर का आदमी होता है जिसके पास पहले रिज्यूमे जाता है, वो सबसे पहले उसमें लिखता है कमेंट, उसमें कहता है कि ये आदमी बड़ा लेजी है, लेजी है आदमी क्योंकि ये अपना रिज्यूमे ढंग से नहीं बना सकता। इस आदमी को जो है देखिएगा साहब क्योंकि ये थोड़ा सा लेजी लग रहा है। सो डू इट विथ परफेक्शन, राइट? एंड देन यूज अ हेडर ऑलवेज। अगर आपने लिखना है अपने एजुकेशन के बारे में तो उसका हेडर यूज करिए, माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या माई एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। उसके नीचे अपने आप को पूरा एक्सप्लेन करिए। अगर आपके पास थोड़ा बहुत कोई एक्सपीरियंस है तो उसमें माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो हार्ड हिटिंग जो हेडर्स होते हैं वो हमेशा हेल्प करते हैं। Then keep things professional, right? Don't talk about negatives in your CV. कभी कभी सीवी में बोलते हैं कि आई हैव चेंज, मे भी छोटा मोटा काम आपने किया हो किसी कंपनी के अंदर या कुछ दिनों के लिए किया हो, उसके बाद उसमें लिखा होगा रीजन फॉर लीविंग, तो आप बोले द मैनेजमेंट वाज नॉट गुड, तो अगला समझ जाता है कि यार ये लड़का जो है वो मैनेजमेंट कोई बुरा कह रहा है, तो ये आदमी सही नहीं है। नो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, ट्राई टू बी एज पॉजिटिव एज पॉसिबल। Don't overuse fancy colors and fancy fonts, right? Keep it simple, readable, and professionally looking, modern, decent CV. Make it longer than 1 page, right? Longer than 1 page तभी बनाएंगे जब आप अपने बारे में बहुत कुछ जानते हो। जब अपने बारे में कुछ जानता नहीं है कोई, तो वो क्या है 4 लाइनों में उसका CV खत्म हो जाता है। So try to make it longer, try to elaborate yourself better, and supplement your resume with a cover letter.
एक कवर लेटर भी उसके साथ होगा तो अच्छा रहेगा, वो वेलकम साइन होता है। एंड समरी मैं बाद में फिर बता रहा हूँ आपको, अपने सीवी की समरी जो है उसको हमेशा अपने साथ रखिए, अपने रिज्यूमे के साथ अपना सीवी का समरी हमेशा ही रहना चाहिए। उससे आपको जो है वहीं से वो क्वेश्चन शुरू होंगे, जो आपने सीवी की समरी बनाई होगी उसी के बेस पे आपके पास क्वेश्चन होंगे। So friends, this is what actually is all about your preparation for your career. Now let me come back, stop share, and I come back. Hello. Yes, sir. Yes, Arjuman, can you? Yes, sir. The Am I? session was very informative, sir. It was very nice. I Thank you so much. So thank there's you very one much. question. The child Yeah, is yeah, asking that is cover letter important? yeah. Very important. You see, anywhere where you go, you would like to introduce yourself and maybe request yourself to be interviewed. So that is what cover letter is all about. And a cover letter says that I'm so and so. I would request you to give me a chance to get interviewed by you, and that is what the cover letter is all about. Good, well-framed cover letter will always be beneficial while going for an interview. Always, write some good, sound sentences there, and then before the interviewer calls you, write a last. If you have a last line, say for example, "Thanks for giving me your valuable time. Thank you in advance for giving your valuable time." तो अगले को लगता है कि नहीं यार, बुलाओ बच्चे को, बात करते हैं उसके साथ। ये सबसे पहली बात ये है कि आपको इंटरव्यू में कोई बुलाएगा तो बात करेगा ना, बुलाएगा ही नहीं तो बात कैसे करेगा। तो जितना इम्पोर्टेंट एक सीवी होता है, रिज्यूमे होता है, उतनी ही इम्पोर्टेंस उस कवर लेटर को मिलती है। बट इट शुड बी वेल डन एंड वेल फ्रेम्ड एंड प्रोफेशनली फ्रेम्ड। So, sir, how can the students actually keep a difference between cover letter and resumes? Like, what are the things that they should have in the resumes and they should avoid in the cover letter? Yeah, cover letter, there should be not the detail of what you have done. Cover letter is only a request to allow you to go for an interview. Say, for example, you start a cover letter that with a subject. The cover letter is application for the post of dash dash dash, right? Having come to know through dash dash source that you have a vacancy over there, I would request you to give me a chance to interact with you and discuss about myself, because I think I will be able to do justice to the particular responsibility that I'm going to get, right? Thank you very much for your kind consideration, and here I am attaching my resume with you. तो resume में फिर अपनी डिटेल लिखिएगा, तो रिज्यूमे में फिर डिटेल तो रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए कि वेलकम होता है, तो अगला कहता है कि नहीं यार, हम्बल है, हम्बल आदमी है, इसको बुलाओ। हम्बल लोग, नॉलेजेबल लोग, डिसिप्लिन लोग सबको अच्छे लगते हैं। उसके बाद फिर आपकी क्वालिटी, कितना आप बात करते हैं इंटरव्यू के अंदर, आपकी उसके हिसाब से आपकी जॉब फाइनलाइज हो जाती है। यस, एनीथिंग एल्स? एनी मोर क्वेश्चंस? I don't think that students have more questions, but I like to ask something. Yeah, Uh, sure. like I don't have much knowledge about pharmacy and everything, but still I would like to know from the perspective of students that once they go for the interview, like if the time they should be knowing now, like what time they have to reach there and how should they present themselves on the day of the interview. Yeah, you see, so far as presentation is concerned, आज की डेट में जो दुनिया presentation का ही दुनिया है, right? Yeah, the better presentation, you see, professionally presenting yourself is the most important thing. And what is professional? Professional is you must have a say a light color shirt and a dark color trouser with a tie on. That is the most accepted professional attire that you should have when you are going for an interview. और वो सब I फॉलो am करते हैं, वो actually अगला जो सामने बैठा होता है उसको भी उससे ठीक ही लगता है, कहता नहीं यार ठीक है, प्रोफेशनल आदमी। लंबे बाल, बहुत सारा जो है वो चेहरे को जो है वो आज की डेट के अंदर जो है वो कर्व्स एंड टफ्स एंड क्रस्ट बनाते हैं, तो उन चीजों को अवॉइड करें तो अच्छा है, right? It's always avoidable because you don't know what will irritate the person on the other side of the table, right? It is better to have least irritants with you. Don't use too much of colors,
राइट। रेड कलर का शर्ट पहन के जो सामने आता है तो अगला सबसे पहले जो है वी फील कि अरे यार इसको तो बाहर ही रखो, राइट। लाइट कलर शर्ट्स, डार्क कलर ट्राउजर्स एंड गुड टाई इनटू इट। बाल जो है वो छोटे हो, बाल लंबे लंबे बाल, वो किसी को पसंद नहीं है। वो सिर्फ स्क्रीन पे दिखने के लिए और टीवी में दिखने के लिए ठीक लगते हैं, या फिर जिसे कहते हैं ना आजकल वो क्या कहते हैं ये जो लेते हैं ना सेल्फीज, वो सेल्फीज वुल्फीज में ही ठीक लगते हैं। लेकिन जब प्रोफेशनली इंसान जाता है तो वन शुड बी प्रोफेशनली मींस प्रेजेंटेबल, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेवर एवर बी लेट, never ever be late. Come to the dais, come to the location maybe 15 minutes earlier, and don't come too earlier to the area, because then you will be uncomfortable. आपका जो पेशेंस लेवल खो जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि कैमराज लगे रहते हैं आजकल हर जगह पर, तो कैमराज में सब पता चलता है कि इसका बॉडी लैंग्वेज क्या है। फिर आप मोबाइल के साथ खेलना शुरू करोगे, फिर आप जो है वो व्हाट्सएप देखोगे या फिर जो है फेसबुक में जाओगे, तो वो भी पता चलता है कि ये तो खेलने खुलने में बिजी रहता है। तो उतना ही टाइम आप दीजिए, 10 मिनट्स 15 मिनट्स अर्लियर। एंड जब वहां बैठे तो वहां बैठते हुए अपने जो है वो मोबाइल को कम यूज करिए, अपने अटायर पे ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए और ढंग से बैठिए। कुछ लोग जो है बैठ जाते हैं, पीछे लेट जाते हैं, फिर इधर घूमते आते हैं, बाहर निकलते हैं। तो वो कैमराज में आज की डेट के अंदर सब, कभी कभी तो कुछ इंटरव्यूअर्स जो है वो बुलाते ही टाइम पे हैं और टाइम लगाते हैं, और फिर देखते हैं कि कैमराज में ये आदमी का बॉडी लैंग्वेज कैसा है, क्या इसको लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, क्या हमारी टीम के अंदर ये सेट होगा, नहीं होगा। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, And बहुत so, जरूरी। what और about the attire for girls in the pharmacies, like pharma industry? गर्ल्स का तो आज की डेट के अंदर देखिए, जो गर्ल्स के जो ड्रेसेस हैं, गर्ल्स के ड्रेसेस आई हैव नेवर फाउंड बेटर देन शलवार एंड कुर्ता। आई हैव नेवर फाउंड बेटर देन दैट। बट आजकल गर्ल्स जो है वो भी जो है वो शर्ट्स एंड ट्राउजर्स पहनती हैं, कोट्स पहनती हैं, उसमें भी सही लगती हैं। लेकिन जो है वो अच्छा शलवार एंड कुर्ता हैज ऑलवेज बीन अप्रिशिएटेड एनीवेयर इन द इंडस्ट्री। क्योंकि जब हम गर्ल्स का इंटरव्यू लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ये गर्ल जो है क्या ये डिसिप्लिन मेरे ऑफिस का मेंटेन करेगी। तो वो सबसे अच्छी बात होती है। उस गर्ल का जो है तरीका जो है, उसका बैठने का तरीका, उसका बात करने का तरीका जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और शर्म जो है वो हमेशा ही अच्छी रहती है, राइट। टू मच ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस ड्यूरिंग इंटरव्यूज जो है उसको लाइक नहीं करते हैं। पर्सनली तो जो इंटरव्यू लेने वाला हो वो शायद लाइक करे, चलो बातें करेंगे इसके साथ, लेकिन अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो उसको लगता है कि नहीं यार, पता नहीं ये कल को डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि उसको टीम की जरूरत होती है। इट्स ऑलवेज गुड टू बी सोबर व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, राइट। प्रोफेशनली ड्रेस्ड, सोबर एंड जिसे कहते हैं ना माइल्ड एंड हम्बल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट Thank विदाउट you. हैविंग हेजिटेंस एंड चेहरे पे जो है वो हेजिटेंस नहीं दिखना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वैसे आई हैव सीन इन माय इंटरव्यूज गर्ल्स आर मोर कॉन्फिडेंट देन बॉयज, राइट। बॉयज जो है वो परेशान ही रहते हैं, गर्ल्स की बॉडी लैंग्वेज हमेशा ही पॉजिटिव रहती है। यस। Thank you for that answer, sir. Let me tell you one thing, you have a wonderful smile. Okay. Thank and you. and and smile adds the face value. आपका फेस वैल्यू आपकी स्माइल जो है उसको ऐड करती है। ऑलवेज गो विथ अ स्माइलिंग फेस, इवन इफ यू आर टेंस, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, दैट्स वेरी वेरी Definitely. इंपॉर्टेंट। Thank you so much, sir. It was really very informative session. Seriously, थैंक यू I वेरी guess the students will also would have learned a lot from you, and I think we should end the session now. If you have anything to say, sir, to the students, anything that you would like to give up, anything else? No, I would like to tell the students that be confident and be means knowledgeable, because knowledge का और कोई market के अंदर कोई भी और substitute नहीं है। Market is always full of knowledgeable people. हमको अपना उतना ये नहीं कि बहुत ज्यादा हमें साइंटिस्ट बनने की जरूरत है हर चीज में, लेकिन जो हमने पढ़ा है, जिसके बारे में मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, उसकी नॉलेज तो होना चाहिए। होता है ना, दो शरीफ आदमी आपस में बात करते हैं, पता चला कि आप देखिए दो लोग होंगे, एक मलयाली है
और एक गुजराती है, अगर दोनों ही एक मलयाली में बात करेगा एक गुजराती में बात करेगा, दोनों को अंडरस्टैंड ही नहीं होगा क्या हो रहा है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, एक लैंग्वेज यूज करते हैं, मे बी इंग्लिश और मे बी हिंदी। वाई? बिकॉज दैट इज ए कॉमन लैंग्वेज। और एक इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यू के बीच में कॉमन लैंग्वेज क्या होता है? उस जॉब की रिक्वायरमेंट। अब उस जॉब की रिक्वायरमेंट अगर मुझे मालूम है और उसको भी मालूम है, दोनों एक ही पेस पे बात करेंगे तो दोनों का एक्सेप्टेबिलिटी बेटर होगा। तो थोड़ा सा जो है नॉलेज को हल्का सा इलेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे तो ऑलवेज गुड। Thank you so much, sir. यस, Thank you, sir. It थैंक यू was nice अंजुमन, having you here. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच।